You are watching the truth behind the news. We all already know that our healthcare system and other essential facilities to the COVID patient. कोई चीज मिल रही है तो वो उसको भी नहीं मिल रही, तो ये एक जनरल चीज की बात करें क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विशेष यूथ RD Commissioner sir, SSP sir, ADC sir, all my eminent ADC members, RSTU, DDC chairperson, vice chairperson, PDC chairpersons, and all the prominent officers who are sitting here. My respectful greetings to all. I, Nazir Ali, DDC member from NSSP constituency Punch. First of all, I welcome Shahid sir to our district Punch from the depth of my heart. It is our good fortune, sir, that you have come to listen to our problem. And sir, when it comes to our problem, we don't even know where to start, what to start with, and where to end. As my all other colleagues, including BDCs and DDCs, have told you about the grievances that our people are facing right now, be it electricity, road connectivity, or water supply. I'm not going to discuss any of it. My conscience doesn't allow me to talk anything other than healthcare system. As we all already know that our healthcare system is collapsed. Matter of concern is COVID-19. And we all know how this pandemic is spreading and how much preparation we have done till now. COVID care centers have been established. Our district administration had done incredible work on it. Even COVID care centers for Panchayat has been established. Kindly make them functional, immediately provide medicine, oxygen concentrator and other essential facilities to the COVID patient. Sir, in our district, we have shortage of doctors. We have shortage of technicians, equipment, infrastructure, basic infrastructure. We have only 3 anesthetists in our district Punch with no technician to help them. We have shortage of many other things, including I'm talking about PHC. The condition of the PHC is worst of all. Sir, मानी तेजा PHC में एक्सरे मशीन थी एक, इसे उठा के 2 साल पहले Punch ले आए थे और आज तक वो वापस नहीं गई और वहाँ पे कोई भी लैब फैसिलिटी नहीं है, टेक्नीशियन है वहाँ पे, एक्सरे मशीन नहीं है, जहाँ पे एक्सरे मशीन है वहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। PHC में एक ही डॉक्टर होता है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, जबकि PHC 24/7 अवेलेबल रहनी चाहिए, वो 10 to 4 रहती है। सेम केस है जो अजोक में PHC है। सर, the most worrying part is as we have not still managed ourselves to overcome from this COVID pandemic, yet another disease has come at our door, that is mucormycosis. And the matter of concern is we neither have an ENT nor we have an eye specialist in district hospital to treat this black fungus disease. So I am not a person who is present here to complain about anything. I know एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है और मैं चाहती भी नहीं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूं क्योंकि सभी ने बहुत डिटेल में आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करती हैं। सर, मैं अपने बॉर्डर की बात में अपने एरिया की बात करूंगी। इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी more than 80% populations are the tribals and they are living in the border area. And border area has its issues. In border area, they are struggling with many more difficulties. These areas are the most undrugged areas due to the shelling zone.
as Government of India has agreed ceasefire agreement, has made ceasefire agreement. So this is a high time to work on these area and make these area built under many governmental, to make many governmental by implementing schemes over there. And so I request you to kindly provide fund like tribal sub-fund, because my constituencies have more than 8% tribals, and that too they are living in border area, so that we can help them and make that area well, so we can make area well by implementing many schemes over there. Then so there is health and wellness center at Jalan. COVID vaccine drives are going over there. But वहाँ मैं गई, उन सब ने बोला कि उनको ना तो ग्लव्स प्रोवाइड किए गए हैं, ना उनको सैनिटाइजर दिया गया है, ना ही उनको पीपीई किट दी गई है, और फिर वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं जालान में। ये मतलब इसके चलते एक दो ऐसी मीटिंग में हमारा नहीं आने चाहिए, ये हम लोग बेसिक काम अपने जहाँ भी अपने अगर सुरक्षित पॉइंट है तो रोड को भी कैसे प्लान और सर इस टाइम जो और सर इस टाइम जो हम कुछ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ बचा सकती है या हमें शायद रिलीफ मिल सकता है, वो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको जल्द से जल्द उसका काम शुरू किया जाए और उसको फंक्शनल किया जाए। सर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है, जैसे ये आ गया अपना सर डेली बेस्ड एक्टिविटीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री है, क्योंकि इनमें वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर हो सकती है। तो काइंडली अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो वुमेन के लिए वुमेन की फेवर में काफ़ी अच्छा होगा। सर ट्रॉमा हॉस्पिटल से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमें इस चीज़ से इशू नहीं है कि ट्रॉमा हॉस्पिटल राजौरी वालों को मिल रहा। हमारा कंसर्न ये है देखिए सर, हमारा इशू ये है कि आप देख लें हम 250 किलोमीटर और जम्मू से दूर और यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं। तो अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल हो जाएगा तो ट्रॉमा हॉस्पिटल के साथ साथ हमें बेनिफिट ये है कि हम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं एज एमसीएच, और ट्रॉमा हॉस्पिटल में हम बहुत से डिपार्टमेंट शिफ्ट भी कर सकते हैं। हमें 200 बेड ट्रॉमा हॉस्पिटल चाहिए सर। अगर आप ऐसे से ये हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप उन तक पहुँचाए, हमें भी एक ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे कुछ के जितने भी लोग हैं उनको ट्रॉमा हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पे जीएमसी नहीं है, मेडिकल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनका ऐसे बुरा हाल है, हम उन्हीं के साथ हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो मुझको भी नहीं मिल चाहिए। तो ये एक अनजस्टिस है, मुझे लगता है कि एल्सर को इस पर सोचना चाहिए। सर मैं हमेशा से हर मीटिंग में बोलती आई हूँ कि वुमेन कॉलेज मुझको मिलना चाहिए। सर मैं इसके फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि फॉर फ्लंग एरिया से 12th के बाद जितनी भी हमारी बहनें हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि आज भी ऑक्सफोर्ड सोच के लोग हैं, तो शायद ऑक्सफोर्ड सोच के लोग हैं या उनकी कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो सर अगर वुमेन कॉलेज पुरुष में होगा और हमारे पुरुष में वैसे ही एक
कॉलेज है और सबसे पुराना कॉलेज है। अगर वुमेन कॉलेज हमें मिल जाएगा तो उन जो गांव में दूर दूर इलाके में जो लोग रहते हैं वो उनके फायदे में भी बहुत अच्छा हो जाए। सर 2014 में फ्लड आया था, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ब्रिज आता है, वो आज तक डैमेज है और उसको आज तक ठीक नहीं हुआ। हम बहुत से इश्यूज उठाते हैं सर, ब्रिज की बात करें, कौन सा ब्रिज कर रहे हैं? ये लुंगनी नाला सर वो बीआरओ का ब्रिज है, वो थ्रू है लेकिन है उसको कुछ प्रॉब्लम। ये के ऑफिस में इतने ब्रिजेस दिए हैं 2014 और सर ये कम्युनिटी क्लासेस के रिलेटेड भी मैं हमेशा बोलती आई हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल टेली कम्युनिकेशन नहीं है। और सर हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सफर कर रहे स्टडीज में, बहुत पीछे हैं। सर प्लीज ये करवा दीजिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे बहुत सफर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।